Hello students, in this video I Yuhay Kumar going to discuss a very important topic for class BSc part 3 physics honors and general courses, which is time independent and time dependent Schrodinger wave equations. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तथा जनरल कोर्सेस को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर 2 में, जिसका नाम है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट wave equation. For this, suppose a group of de Broglie waves associated with a moving particle in three-dimensional space. Let psi function of position coordinate r and time t, that is psi rt in the bracket. Let psi rt be the displacement of the wave at any instant t in a space having position vector a small r vector. So differential equation of wave motion is given by del square psi equals to 1 by v square del square psi by del t square, where v is the velocity of the wave, that is v is the wave velocity. So differential equation starting from this differential equation of wave motion in three-dimensional space is del square psi equals to 1 by v square del square psi upon del t square. This is equation number 1. The solution of this equation, that is the solution of differential equation of wave motion, is the solution of this differential wave equation is psi function of rt equals to psi naught is the maximum displacement of the wave at position r and multiplied by e to the power minus I omega t. This is equation number 2. To obtain del square psi by del t square, the term in RHS of equation 1, that is differential wave equation, we have to differentiate twice equation number 2. So differentiating equation 2 twice with respect to time, we get del psi upon del t equals to psi 0 is constant because it is the maximum displacement of the wave multiplied by e to the power minus I omega t का डिफ्रेंसिएशन e to the power माइनस आई ओमेगा टी, और फिर माइनस आई ओमेगा टी का जो टर्म पावर में है ये एक्सपोनेंशियल का, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, दैट इज 1, सो इट इज माइनस आई ओमेगा. This is equation number 3. We can suppose it. We have to differentiating equation 2 twice with respect to time. और अभी तक हमने एक बार डिफ्रेंसिएशन किया है साई का टाइम के रिस्पेक्ट में.
So again differentiating with respect to time, we get del square psi by del t square. Now del square psi upon del t square is equal to minus I omega psi naught r function of r into e to the power minus I omega t into minus I ओमेगा, एंड फिर पावर में एक्सपोनेंशियल का जो पावर फंक्शन है, पावर में जो टर्म है माइनस आई ओमेगा टी का, फिर एक बार करेंगे। ऐसे तो साई जीरो आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, साई जीरो आर तो कांस्टेंट ही है, और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी का ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और माइनस आई ओमेगा पहले से है फर्स्ट एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पर साई का टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 में, और यहाँ एक बार फिर माइनस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी का माइनस आई ओमेगा टी एक बार फिर हो जाएगा, अगेन ट्वाइस दो बार करने पर माइनस आई ओमेगा, फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब साई नॉट आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इज साई आर टी, और सिंपली साई, और डेल स्क्वायर साई अपॉन del t square is equal to psi, which is the function of position coordinate r and time t in a space. So psi naught r e to the power minus I omega t is psi rt, or simply psi. So psi और माइनस आई ओमेगा इंटू माइनस आई ओमेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी को, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इजकल टू, देन आई स्क्वायर इजकल टू माइनस 1, देन इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर. So minus omega square, in RHS we have minus omega square into psi, minus omega square into psi, and in LHS it is del square psi by del t square, and delta t square is equal to RHS is minus omega square psi. Now we have omega is equal to we can put this value del square psi by del t square minus omega square psi. This is equation number 4. In equation 1 we get del square psi equals to 1 by v square into minus omega square psi. Therefore using equation 4 in equation 1 we get LHS is del square psi, RHS is 1 by v square multiplied by, and del square psi by del t square, delta t square is minus omega square psi, minus omega square psi, और del square psi, और इस टर्म को सेकेंड टर्म को LHS में ले आते हैं, तो del square psi प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर psi अपॉन वी स्क्वायर है, LHS में लाने पर del square psi प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साई हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, और 2 पाई एन इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी. तो सिंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई न्यू, एंड न्यू इज v बाई लेमडा, v अपॉन लेमडा, therefore omega equals to 2 pi by lambda, 2 pi, we have to find the value of omega by v. So omega by v, we can write it as omega by v is equal to 2 pi by lambda. In place of omega by v we can write 2 pi by lambda in equation 5, and omega square by v square is omega by v ka whole square. So we can write equation 5 using this equation 6, omega by v is equal to 2 pi upon lambda. So from using 5 6 in 5 we get, or from equations 5 and 6 we get, from 5 equations 5 and 6 we get del square psi plus omega by v is 2 pi by lambda, 2 pi by lambda whole square into psi equals to 0. Now we can write del square psi plus 2 pi by lambda square psi is equal to 0 as del square psi plus 2 pi by lambda square is 4 pi square upon
lambda square psi equals to 0, and this is equation number 7. Now using de Broglie's formula, lambda is equal to h by p. अब de Broglie formula का de Broglie फॉर्म का सूत्र का यूज करेंगे. lambda is equal to h by p and p is linear momentum of the particle, material particle moving of mass m moving with velocity v. So lambda is equal to h by p, that is h by mv. Now using de Broglie formula, lambda equals to h by p and p is mv, mass into velocity, and this is equation number 8. Now substituting lambda is equal to h by mv in the denominator of equation 7, that is del square psi plus 4 pi square by lambda square psi is equal to 0. तो इन प्लेस ऑफ lambda अब यहाँ पर इस इक्वेशन 7 में lambda की जगह कितना रखा जाएगा? de Broglie का फॉर्मूला h by p, that is h by mv, where p is linear momentum of the particle which is mass into velocity. So using 8 in 7, using equation 8 in equation 7, we get del square psi plus 4 pi square by h by mv whole square into psi equals to 0, और del square psi plus 4 pi square m square v square अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, चूँकि लेमडा की जगह हमने पुट किया इस इक्वेशन 7 में डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0 के सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में लेमडा की जगह पुट किया गया कितना? h बाई एम वी. h बाई एम वी स्क्वायर डेट इज h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर वी स्क्वायर. तो m स्क्वायर वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू 0. This is equation number 9. Now we have to find the value. We have to again we have to substitute m square v square in terms of that is half m square v square is kinetic energy. तो kinetic energy is the difference between total energy minus potential energy. तो हाफ एम बी स्क्वायर मालूम करके फिर एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू मालूम किया जा सकता है. तो अब इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी वी. मतलब टोटल एनर्जी ई माइनस वी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिम्बॉल कैपिटल टी या के से डिनोट किया जा सकता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ एम बी स्क्वायर. तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पर लिखा जा सकता है कितना? ई माइनस वी. देयरफॉर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू 2e माइनस वी. सो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इजकल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर एम वी स्क्वायर इजकल टू 2e माइनस वी. बट हेयर इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 9. मतलब इक्वेशन 9 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर है. तो इसलिए अब लेकिन हम ऑब्टेन क्या किए हैं? एम वी स्क्वायर इजकल टू 2e माइनस वी. देयरफॉर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा. देयरफॉर वी हैव एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू 2m माइनस वी. Now substituting for m square v square equals to 2m minus v in equation number 9, we get another equation del square psi plus 4 pi square upon h square, और m square v square की जगह कितना? 2m इंटू e माइनस v सब्सिट्यूट किया जाए इक्वेशन 9 में. तो इंटू 2m e माइनस वी
ई माइनस भी साई मल्टीप्लाइड बाई साई इक्वल्स टू 0 और डेल स्क्वायर साई प्लस 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इंटू साई equals to 0, and this is time independent Schrodinger wave equation. This is time independent Schrodinger wave equation. Del square psi plus 8 pi square m by h square e minus v psi is equal to 0, where v is the potential energy and e is the total energy. E is the total energy of the particle and v is the potential energy of the particle. इसमें कहीं भी टाइम इंडिपेंडेंट है, कहीं भी टाइम का फंक्शन नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. और इसको एच क्रॉस के रूप में भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है. एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2m बाई एच क्रॉस अगर करेंगे तो एच क्रॉस एच बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, और ऊपर में 2 है तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो इतना टर्म आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर m बाई एच क्रॉस स्क्वायर. तो इक्वेशन 10 टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, जिसे 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है. इसे हम एच क्रॉस के रूप में, एच क्रॉस इक्वल टू एच बाई 2 पाई के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो इक्वेशन 10 कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल्स टू 0. And this is another form of Schrodinger's time independent wave equation, or Schrodinger's time independent equation simply, where h cross square is h by 2 pi, where h cross is equal to h upon 2 pi. तो इक्वेशन 10 को, इक्वेशन 10 क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0. और इसी टर्म को, इसी इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई के रूप में इक्वल टू 0 के रूप में फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ एच क्रॉस इक्वल टू h बाई 2 पाई है. तो बोथ इक्वेशंस 10 एंड 11 रिप्रेजेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव equations, because equation 10 and equation 11 both does not contain any term containing time, so both are Schrodinger's time independent wave equation. Equation 10, equations 10 and 11 represent time independent Schrodinger's time independent wave equation, or time independent Schrodinger wave equation. Time independent Schrodinger wave equations. Now we have to derive time dependent Schrodinger wave equation. For it we have to differentiate psi equal to psi naught e to the power minus I omega t, that is the solution of differential wave equation, with respect to time, again as we have done in equation 3. So psi RT solution of differential wave equation is psi naught into e to the power minus I omega t. This is equation 2. This was equation 2 in time independent Schrodinger wave equation. Now we have to differentiate it with both sides with respect to time. इक्वेशन 2 को के दोनों ओर, दोनों साइड में टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, दैट इज इक्वेशन 2 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to WRT time t, we get del psi by del t equals to psi naught e to the power minus I omega t. क्योंकि psi naught कांस्टेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और e to the power तो कांस्टेंट है,
और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी ही होगा। अब फिर माइनस आई ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस आई ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज माइनस आई ओमेगा। नाउ वी हैव साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई ओमेगा इजकल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इजकल टू 2 पाई न्यू, और वी हैव डेल साई बाई डेल टी इक्वल्स टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को 2 पाई एन या 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है। अब न्यू को लिखा जा सकता है ई इजकल टू एच इंटू न्यू, देयरफॉर न्यू इजकल टू ई अपॉन एच, 2 पाई न्यू ई अपॉन एच equals to, now psi naught e to the power minus I omega t is psi from equation 2 in time independent Schrodinger wave equation. We have taken the solution of differential wave equation as psi rt is equal to psi naught e to the power minus I omega t. So in place of psi naught e to the power minus I omega t, we can write psi multiplied by minus I into 2 pi. Now 2 pi can be written as 2 pi can be written as e upon h by 2 pi. तो 2 pi को न्यूमरेटर से h के डिनोमिनेटर में ले जाया जा सकता है, तो e अपॉन h अपॉन 2 pi अब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए RHS में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आई स्क्वायर -1 और माइनस पहले से है, -1 इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे में फिर आई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। h बाई 2 पाई को हम लिखा जा सकता है h क्रॉस इक्वल्स टू साई नॉट ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी साई इंटू आई से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में आई स्क्वायर -1 और माइनस पहले से है तो +1 ई और यहाँ ई और h क्रॉस बाई 2 पाई इज h बाई 2 पाई इज h क्रॉस और आई पहले से है तो आई h क्रॉस और डेल साई अपॉन डेल टी इजक्वल टू h क्रॉस इंटू ई अपॉन आई एच क्रॉस। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करने पर आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इजक्वल टू ई साई। मतलब अगर एनर्जी ऑपरेटर का यूज किया जाए तो ई के बदले में ई के जगह पर लिखा जा सकता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। देयरफॉर आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इजक्वल टू ई साई। दिस इज इक्वेशन नंबर 12 फ्रॉम द स्टार्ट। नाउ substituting for I h cross del psi by del t is equal to E psi, substituting for I h cross del psi by del t for E psi in equation 11, which is time independent Schrodinger wave equation. We have using 12 in equation 11 in equation 11 we get del square psi plus 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस भी साई। अब साई को अंडर ब्रैकेट में ले आते हैं, साई कैन बी टेकन इनसाइड द ब्रैकेट, तो ई साई माइनस भी साई और ई साई की जगह कितना लिखा जा सकता है आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल्टा टी माइनस भी साई अंडर ब्रैकेट क्लोज्ड इजकल टू 0। और अब इसे लिखा जा सकता है माइनस एच क्रॉस बाई 2m प्लस भी, और इसको पूरे पर साई मानी ऑपरेटर के रूप में यूज होगा, माइनस एच क्रॉस बाई 2m प्लस भी अंडर ब्रैकेट साई इक्वल्स टू ई साई। मतलब आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, तो ये दूसरे साइड में चला जाएगा, तो प्लस में है टर्म ही, तो उधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। तो इसको अब प्लस टर्म में लाने के लिए इसको माइनस एच क्रॉस बाई 2m से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड में, मतलब आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इंटू 2m बाई एच क्रॉस को आर एच एस में ले जाने पर माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, और उसके बाद और भी साई को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर तो एच क्रॉस बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर यहाँ भी होगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस एच क्रॉस बाई 2m से अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एच क्रॉस बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर
और साई ब्रैकेट के बाहर और प्लस भी साई, माइनस भी साई है लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस भी साई है, तो अगर माइनस एच क्रॉस बाई 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एच क्रॉस बाई 2m से 2m बाई एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस भी साई इजकल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, दैट इज ई साई। ऑपरेटर इज आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, डेल्टा टी, and minus h cross by 2m del square plus v is Hamiltonian operator. So this can be written as this is one form of time dependent Schrodinger wave equation. यह Schrodinger wave equation का टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation का एक फॉर्म है ऑपरेटर फॉर्म में, माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस भी साई इजकल टू ई साई, एंड दिस इक्वेशन 13 contains energy in RHS, so it is called time dependent Schrodinger wave equation. इक्वेशन 13 के राइट हैंड साइड में एनर्जी का ऑपरेटर है, एनर्जी का टर्म है एनर्जी ऑपरेटर का, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी इज एनर्जी ऑपरेटर। सो इस इक्वेशन को हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कह सकते हैं। नाउ माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस भी द पोटेंशियल एनर्जी को हम एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है इसे, तो इसे एच के रूप में लिखा जा सकता है, मैंने माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस भी को एच लिखा जा सकता है। सो दिस इक्वेशन 13 विच इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड इन ऑपरेटर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज एच साई इजकल टू ई साई इन ऑपरेटर फॉर्म। देयरफॉर द फाइनल इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एच साई इजकल टू ई साई, एच साई इजकल टू ई साई। This is time dependent Schrodinger wave equation, and minus h cross by 2m del square plus v is Hamiltonian operator, minus h cross square by 2m plus del square plus v equals to h, Hamiltonian operator, Hamiltonian operator. So equation 14 is time dependent Schrodinger wave equation, s psi is equal to e psi। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।